Good morning, dear students, and welcome to the world of physics. Dear students, in our ongoing chapter, last we discussed about viscosity, right? What is viscosity? It is a property of fluid, one property of fluid. We take some examples, right? If we flow water and if we flow honey with the 10 Newton force, the displacement is more in water and honey will not travel that much distance with such force, right? Why? Because honey is more viscous fluid than water. This all is discussed, right? Hope all of you are clear with that. In that we discuss like this: if any fluid, it is flowing on this surface, right? Suppose this is surface and fluid is flowing on the surface. The streamline of that fluid is flowing like this, right? The streamline, the bottommost streamline, the velocity of that is equal to 0. The velocity at upper 2, 4, 6, 8, 10, etc. right? But we know that when we go upward, the velocity keeps increasing. The velocity of streamline keeps increasing. इसकी velocity इससे ज़्यादा होगी, इसकी इससे ज़्यादा, इसकी इससे ज़्यादा होगी, right? This is all is clear. Now we know that if such velocities are here, we can call it a relative velocity between two streamline. तो कुछ ना कुछ उनके बीच में कुछ velocity का different होगा, right? Suppose I take this distance, this is distance L, right? And in this L distance there is a velocity difference equal to V, right? इतनी length में velocity का different V है. Then I can derive this term V upon L, that is a change in velocity divided by length. This is known as velocity gradient, right? It is our velocity gradient. Velocity gradient. Okay. Now ये आता क्यों है, velocity आती क्यों है? Due to the pressure we have given, that is force upon unit area, right? Now we derived this equation, force upon area is proportional to V by L. After cancelling this proportional sign, F upon A is equal to eta V by L, right? What do you mean by this eta? Eta is our coefficient of viscosity, right? It is coefficient of viscosity or modulus of viscosity, whatever you say. Now when we define this eta is equal to force upon area divided by velocity divided by unit length, right? This is the formula of eta, the coefficient of viscosity or modulus of viscosity, whatever you say. Now let me define eta. What you mean by eta? So for example, suppose V upon L is equal to 1. Suppose this term become 1, right? If V upon L is equal to 1, then I can get this eta is equal to F upon A. Eta is equal to F upon A when V upon L is equal to 1. मतलब कि eta is equal to force upon unit area. Eta, that is means our coefficient of viscosity. किसको बोलते हैं? The value of eta is equal to force upon area, the force applied per unit area at which our velocity gradient equal to 1, right? Our velocity gradient equal to 1. This is known as a eta or coefficient of viscosity, right? उतनी वैल्यू किसकी? फोर्स अपॉन एरिया की उतनी वैल्यू जब हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना मिलता है? 1 मिलता है. दैट वैल्यू ऑफ फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू ईटा. क्लियर? नाउ ओके, लेट मी डिफाइन यूनिट. वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी पर लेंथ. व्हाट इज द यूनिट? द यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड and the length meter. We get the unit second inverse. The unit of velocity gradient is second inverse. Okay, now let's define this. The unit of eta, force, that is force in upon area, and here velocity gradient, right? Velocity gradient has unit second inverse. Force, that is Newton upon meter square, and second inverse, this is how we get Newton into second meter inverse, right? 1 upon meter square.
This is the unit, Newton second upon meter square, unit of eta. Okay, dimension formula we can derive. Force dimension formula m1 l1 t minus 2, right? ml t minus 2. Area, that is l minus 2 because it is in denominator, and second, that is t1, right? So m l minus 2 plus 1, l minus 1, t minus 2 plus 1, t minus 1. This is the mlt of eta, right? Keep remember the unit and dimensional formula of coefficient of viscosity, right? Dear student, it is important. Now the very important point, come to the force, right? We know that जब ये दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के ऊपर से ऐसे गुजर रही है, राइट? इसके कांटेक्ट में ये है, क्या कर रही है? इसको अपने साथ खींचने का ट्राई कर रही है, ये इसको रोकने का ट्राई कर रही है, नीचे वाली इसको रोक रही है, ऊपर वाली इसको लेके जाने का ट्राई कर रही है. ड्यू टू दैट देयर इज सम ऑपोजिट फोर्स बिटवीन दैट, ड्यू टू द रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी आती है तो उसके अंदर एक ऑपोजिट फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिस फोर्स को हमने नाम दिया था विस्कोस ड्रैग, राइट? इट इज आर विस्कोस ड्रैग और विस्कोस फोर्स. वो कहां लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, विस्कोस ड्रैग, राइट? अब समझो, द फोर्स यू हैव गिवन, सपोज यू हैव गिवन 10 न्यूटन फोर्स, और ये दोनों स्ट्रीम लाइन के बीच में कुछ विस्कोस ड्रैग ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, राइट? तो आंसर क्या है? अगर 10 न्यूटन फोर्स मैं देता हूं तो क्या सारी की सारी स्ट्रीम लाइन 10 न्यूटन फोर्स से ही फ्लो करेगी? आंसर इज नो. उतनी वेलोसिटी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि बीच में ये विस्कोस ड्रैग प्रोड्यूस होता है, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, by that it can produce this viscous drag, this property is known as a viscosity. We all are clear with that, right? Now come to the point, this viscous drag produce तो होता है, कितना होता है? फ्लूइड के बीच में प्रोड्यूस होने वाला ये विस्कोस ड्रैग कितना होता है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ विस्कोस ड्रैग? दैट इज गिवन, द प्रिंसिपल और लॉ दैट इज गिवन बाय साइंटिस्ट स्टोक, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ स्टोक्स लॉ. इसकी स्टडी स्टोक ने की थी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्टोक्स लॉ. अब समझो स्टोक्स लॉ क्या होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? समझो कोई पानी की बूंद, राइट? हवा में से, बादल में से बारिश जो नीचे आती है, द बबल और यू कैन से दैट पार्टिकल ऑफ वाटर, इट कमिंग टू द अर्थ, राइट? थ्रू एयर, एयर के अंदर से आती है. एक ये चीज है. दूसरी एक चीज मैं लेता हूं कि अगर कोई ऑयल से भरा कोई कंटेनर है, राइट? दिस इज द कंटेनर फिल्ड विद ऑयल, राइट? उसके अंदर मैंने यहां से कोई सॉलिड बॉल, समझ लो कोई एक सॉलिड की कोई हाई डेंसिटी वाली कोई चीज, कोई गोला मैं यहां से नीचे फेंक रहा हूं, मतलब यहां से छोड़ रहा हूं. किसके अंदर? इट इज फिल्ड विद ऑयल, राइट? पूरा ऑयल से भरा है. नाउ थिंक, दिस आयरन बॉल, ये जो आयरन बॉल हमने यहां से छोड़ी है वह कैसे आ रही है? नीचे आ रही है. पहले यहां थी, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई. इट इज फिल्ड विद ऑयल एंड उसके अंदर ये मोशन करती है. जब ये ऐसे नीचे आती है, इसके ऊपर कोई एक फोर्स लगता है. कौन सा फोर्स लगता है? दैट इज mg. नीचे उसके ऊपर फोर्स लगाता है कौन? हमारी अर्थ. कितना फोर्स लगाती है? mg. तो mg जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, mg जितना फोर्स की वजह से, ड्यू टू दैट फोर्स इट्स कम डाउन, ये नीचे आ रही है, राइट? नीचे आ रही है. अच्छा, नीचे आ रही है तो एक चीज हो रही है, जैसे जैसे नीचे आती है, वी नो दैट ड्यू टू द mg द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल और दिस स्फीयर, इट विल गेट इंक्रीजिंग, इट विल कीप इंक्रीजिंग, राइट? द वेलोसिटी ऑफ दिस स्फीयर विल कीप इंक्रीजिंग, ये हमको पता है. नाउ समझो क्या होता है जब ये नीचे आती है, तो क्या होता है? जैसे फ्लूइड के अंदर से पास होती है तो उसके पास वाली जो बिल्कुल फ्लूइड के जो पार्टिकल है उसको अपने साथ ऐसे खींच लेती है. यस और नो? राइट? द नियरेस्ट पार्टिकल्स और द एटम्स ऑफ फ्लूइड, वो उसके साथ अट्रैक्ट हो गए, वो भी नीचे चलना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ये होता था,
राइट, समझो। नाउ ये क्या कर रहा है, ये स्फीयर इसके पास वाली एटम को, फ्लूइड के एटम को अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, राइट। ये तो नीचे इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी, दिस विल हैव सम वेलोसिटी, सपोज द वेलोसिटी इज 10, फॉर एग्जांपल इट हैज 10 वेलोसिटी। अच्छा, जब ये स्ट्रीमलाइन एक स्ट्रीमलाइन बन गई जो नीचे आ रही है, तो उसके पास वाले रहने वाले एटम उसको रोकने का ट्राई करते, बोलते आप मत जाओ, रुको, हम स्टेडी है, आप भी स्टेडी रहो, राइट। इस स्पीयर ने उस नियरेस्ट स्ट्रीमलाइन को या एटम को अपनी ओर खींच लिया, उसकी मोशन स्टार्ट हो गई ऐसी पाइप जैसी, राइट। तो उसके पास वाली जो स्ट्रीमलाइन के एटम्स है वो बोल रहे हैं रुको, राइट, दे विल ऑपोज दिस मोशन। तो ये क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड कम करने का ट्राई कर रहे हैं। किसकी स्पीड, ये फर्स्ट स्ट्रीमलाइन की। ओके, सो सपोज 10 थी तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, 8 हो जाएंगी, राइट। बट एक और चीज होती है, जैसे ये स्ट्रीमलाइन इसको रोकने का ट्राई कर रही है, ये पहली वाली जिसकी वेलोसिटी 10 थी, ये बोल रहे हैं कि चलो आप भी मेरे साथ चलो, उसको भी खींच के अपनी ओर ले जा रही है। सो इट विल गेट सम वेलोसिटी, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी आएगी, सपोज 6 आ गई, राइट, जो 0 थी उससे 6 आ गई। सेम उसकी पास वाली को भी वो खींच के ले जाएगी, सपोज 4 2 1 0, जो नजदीक दूर होंगे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सेम एट दिस साइड, यहां पर भी ऐसे फ्लो ही, उसके पास ये राइट, धीरे धीरे करके जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी। बट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, सी दिस स्ट्रीमलाइन इट ऑपोज द मोशन ऑफ दिस। अगर इसकी स्पीड कम कर रहा है तो ये भी ट्राई करेगा कि मैं स्पीयर की स्पीड जो है वो कम कर दूं, राइट। ये कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। एंड वी नो दैट if there is a change in velocity between these two, we get some relative velocity, and if we have relative velocity then we will have our viscous drag or viscous force, जो भी बोलो, drag है या force है, right, we will have the viscous force or viscous drag। अब यहां पर इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया है, viscous force या viscous drag, right, it is produced। और ये कितना होता है वो हमारे स्टोक्स ने बताया, the force, viscous force, that force is applied on this body flowing or moving in the fluid, the force is equal to 6 pi eta into r into v, right, 6 pi eta into r into v। Okay, what you mean by eta? It is our coefficient of viscosity. R is the radius, of the sphere, right? Here I am denoting eta, it is coefficient, right? R, it is radius, and v, that is velocity. Now dear students, focus over here. We have the formula of viscous drag or viscous force। कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी, राइट। हमने बोला था कि दिस विस्कोस फोर्स, ये जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये इसकी मोशन का ऑपोज कर रहा है, दिस इज द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट ऑपोज द मोशन। तो हमने इसको कंपेयर किया था फ्रिक्शन के साथ, विद द फ्रिक्शन, याद है, राइट, विद द फ्रिक्शन भी यही करता है, द सिमिलैरिटी, विस्कोस ड्रैग एंड फ्रिक्शन के बीच में ये सिमिलैरिटी है। क्या है कि बोथ आर ऑपोज द मोशन, ये भी इसकी मोशन का ऑपोज कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिस विस्कोस फोर्स इट इज इन दिस डायरेक्शन, mg इट इज इन दिस डायरेक्शन, समझ लेना, राइट। अब एक बात समझो, दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, बट एक चीज डिफरेंट है, देयर इज वन डिफरेंट इन दिस फ्रिक्शन और विस्कोस ड्रैग। द सिमिलैरिटी इज बोथ ऑपोज द मोशन, दोनों मोशन का ऑपोज करने वाले हैं। बट एक चीज है, जो फ्रिक्शन है इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते। बट हियर यू कैन सी इंटरेस्टिंग थिंग, द विस्कोस ड्रैग इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, मतलब कि ये स्फीयर की जो वेलोसिटी है उस पर ये विस्कोस ड्रैग अफेक्ट करता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, द विस्कोस फोर्स विल इंक्रीज, right? If velocity will decrease, the force, viscous force or viscous drag will decrease, right? अगर हम कोई सरफेस पे कार चला रहे हैं, कार की स्पीड 10, 50, 100, 500 जो भी हो,
उसके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा. There will be no change, right? We can derive the formula of friction, that is mu into r, right? Hope all of you are clear with that. In that we cannot say that it affect with velocity. इसकी स्पीड अगर 10 की स्पीड से जा रही है कार या 100 की स्पीड से जा रही है, फ्रिक्शन तो बीच में जो लगना है वो ही लगेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता. बट हियर आर विस्कोस फोर्स इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, फोर्स विल इंक्रीज. Clear? And this force, it is in opposite direction. Now dear students, समझो क्या होता है. It is very important, very interesting point. This particle or this ball, this sphere, it come towards the earth, right? ये इस पर mg जितना force लग रहा है. If you know that, अगर उस पर mg force लग रहा है, it will have some acceleration, right? उसका पास कुछ ना कुछ acceleration होगा. It will have some acceleration. There will be a change in velocity. आपको पता है कि जैसी ये चीज नीचे आती जाएगी, उसकी velocity due to mg, the velocity keep increasing. The velocity keep increasing. अब समझो, सपोज उस पर 100 mg जितना फोर्स लग रहा है, सपोज 100 न्यूटन. mg कितना लग रहा है? 100, राइट? तो अभी उसके पास कुछ वेलोसिटी है, सपोज 5 है. 100 जब लग रहा है 5 है. नाउ वी नो दैट यहां पर 5 थी, जैसे नीचे आया, वी नो दैट जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड विल इंक्रीज, द वेलोसिटी विल इंक्रीज. 5 से 10 हो गई. समझो, इफ वेलोसिटी विल इंक्रीज, आर विस्कोस फोर्स और विस्कोस ड्रैग विल आल्सो इंक्रीज. आर यू गेटिंग, राइट? 100 mg से नीचे आ रहा है, अभी उसकी स्पीड यहां पर 5 है. जहां पर हमने छोड़ा था तब उसकी स्पीड 5 थी. जब हमने देखा थोड़ी बहुत स्पीड इंक्रीज हुई, 5 से हो गई 6, 7, 8, 9, 10, राइट? सपोज 10 हो गई. जब 5 से आ रहा था, कुछ विस्कोस ड्रैग उस पर लग रहा था, सपोज विस्कोस ड्रैग की वैल्यू थी 20, राइट? जब ये 5 थी. नाउ जैसे नीचे आएगा स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड विल कीप इंक्रीजिंग एंड ड्यू टू दैट आर विस्कोस ड्रैग विल आल्सो इंक्रीज. 10 हो गई तो सपोज 40 हो गया ड्रैग. आर यू गेटिंग? सो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स 100, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स 40, और इंक्रीज हुई, ये फोर्स भी इंक्रीज हो गया 60, और इंक्रीज हुई, इंक्रीज हो गया 80, स्पीड 20 हो गई, ये हो गया 100. नाउ सीरियस स्टूडेंट, वी नो दैट इफ वी इंक्रीज आर विस्कोस ड्रैग इंक्रीज. अगर वेलोसिटी जब 5 थी तब हमारा विस्कोस ड्रैग 20 था, जब वेलोसिटी 20 हो गई इट बिकम्स 100. नाउ डियर स्टूडेंट्स, द डाउन मोस्ट फोर्स जो डाउनवर्ड्स में लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स 100, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 100. अब समझो क्या हो रहा है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे की ओर भी 100, ऊपर की ओर विस्कोस ड्रैग भी कितना मिल गया? 100, राइट? सो बोथ फोर्स आर इक्वल नाउ, बोथ फोर्सेस आर इक्वल नाउ. मतलब क्या है, इसकी स्पीड 5 से 10, 10, 15, 20 तक बढ़ी. अब समझो दोनों की फोर्स की वैल्यू सेम हो गई, तो इसका मतलब इफ फोर्स इज इक्वल, इट एक्सेलरेशन विल कैंसल आउट. अब उसके ऊपर कोई कैंसल नहीं लगेगा क्योंकि नेट फोर्स कितना हो गया? 0. सो F इज इक्वल टू ma. F 0 हो गया तो डेफिनेटली आर एक्सेलरेशन विल आल्सो 0, राइट? एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी में अब कोई चेंज नहीं आएगा. देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी नाउ, राइट? वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0. एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है? देयर विल बी नो चेंज. इसका मतलब अब इसके ऊपर नीचे की ओर एंड ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स सेम है, तो क्या ये रुक जाएगी? आंसर इज नो, इट विल नॉट स्टॉप. बट एक चेंज होगा, जो वेलोसिटी उसने गेन कर ली है, सपोज 20 तक पहुंच गया, राइट? उसी वेलोसिटी से अब नीचे आएगा. नाउ देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी. क्लियर? देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी नाउ. The velocity will uniform, it will be constant. क्लियर? सो अगर उसने यहां से 5 से लेके 20 की वेलोसिटी अगर गेन कर ली है, सो आफ्टर दिस कंडीशन ये वेलोसिटी ऐसी आई, कुछ वैल्यू वेलोसिटी की एक ऐसी आ गई जब हमारा विस्कोस ड्रैग इक्वल टू mg हो गया है. मतलब कि इस वेलोसिटी ने एक्सेलरेशन को टर्मिनेट कर दिया. This velocity, the value of this velocity terminate this acceleration, and due to that, this type of velocity, it is known as terminal velocity. Right? It is known as terminal velocity. Terminal velocity. So,
टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? इट विल टर्मिनेट द एक्सेलरेशन. कैसे करता है कि जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी विस्कोस ड्रैग भी इंक्रीज होगा. एक वैल्यू ऐसी आएगी जब हमारा विस्कोस ड्रैग इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स जितना हो जाएगा, राइट? एंड इट विल terminate the acceleration, and that is why it is known as a terminal velocity, right? So dear students, it is important and interesting topic about viscous drag. और ये different होता है फ्रिक्शन में. दोनों अच्छा, फ्रिक्शन एंड विस्कोस ड्रैग बोथ विल ऑपोज द मोशन, बट ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. क्लियर? सो नाउ होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस. दिस इज नॉन एज ए टर्मिनल वेलोसिटी. कब होता है? जब ऐसी कंडीशन आती है तो एक चीज हमारे पास आ गई, द डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स. नीचे की ओर लगने वाला फोर्स और ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स सेम हो जाएगा, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर दैट टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, सो नाउ लेट वी कैलकुलेट or the derive the amount or the value equation of terminal velocity. Okay, terminal velocity का derivation देखो, it is very important. First, जो स्फीयर हमने नीचे भेज रही थी, ओके, कुछ क्वांटिटी पहले ले लेते हैं. सपोज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, राइट? ये स्फीयर की भी कुछ डेंसिटी होगी. सपोज द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज रो, राइट? इट इज ए डेंसिटी ऑफ स्फीयर. एंड जो लिक्विड में जो फ्लो हो रहा है, सपोज ऑयल था, कोई भी लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा, राइट? नाउ सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड और द फ्लूइड. It is okay. Now it has some volume. V is the volume of sphere. Eta, that is coefficient of viscosity. Right, and the Vt is the terminal velocity. Now dear students, see, अब हमको पता है कि जब ये चीज नीचे आती है, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, कितना? mg जितना, राइट? और अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक फोर्स है, कितना? विस्कोस ड्रैग जितना. नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ विस्कोस ड्रैग. इट इज इक्वल टू, हियर आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ विस्कोस ड्रैग, F इज इक्वल टू 6 पाई eta into r into v, राइट? This is the value of viscous drag. अब समझो, we want to derive the equation for terminal velocity. Terminal velocity आती कब है? When the downward force equal to upward force. When the downward force equal to upward force. Okay, जितना नीचे लग रहा है उतना ऊपर लगता होगा. तो चलो ठीक है, let me derive the downward force. Downward force कितना लग रहा है? It is due to the force mg, right? Downward force कितना है? mg. So can I write mg like this? M is equal to rho into v, because v equation rho is equal to m by v. V for volume, here not velocity, right? So can I write like this? V into rho into g. This is the downward force. What are the upward force? कितने लग रहे हैं? अब देखो, एक और चीज दिमाग में रखना डियर स्टूडेंट्स. द विस्कोस ड्रैग, पहला तो एक फोर्स ऊपर है, दूसरा एक फोर्स लगता है उसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, राइट? द नेम ऑफ दैट फोर्स इज बायोन्सी फोर्स. बायोन्सी फोर्स क्या होता है, कितना होता है, समझो. ये जब इस स्फीयर को हमने लिक्विड में जब रखा, राइट, इसको जब यहां रखा, तो उसने अपनी वेट जितना लिक्विड को बाहर फेंक दिया. मतलब यहां अगर लिक्विड इसके अंदर मोशन करता है, ऐसे मोशन करता है, तो कुछ लिक्विड यहां से हट जाता है, राइट? आपको पता है यहां से जो निकल गया या यहां से बाहर निकल गया, समझो वो कितना लिक्विड होगा? तो जितना उसका वेट होगा, राइट? एंड दैट फोर्स, दैट इज नोन एज अ बायोन्सी फोर्स और बायोन्सी इफेक्ट, उसको हम बोलते हैं बायोन्सी इफेक्ट. इट इज गिवन बाय आर्किमिडीज, राइट?
the principle it is given by scientist Archimedes, it is known as Archimedes principle. जितना उसका वेट होता है ना उतना ही वो लिक्विड का रिप्लेसमेंट करता है. ये जो अगर फूल था, समझ लो यहाँ पर फूल भरा हुआ था, इसके रखने के बाद हमको पता है कोई चीज़ हम रखते हैं कोई हैवी वेट वाली तो कुछ पानी यहाँ से बाहर निकल आता है, राइट. कितना बाहर आता है, कितना बाहर आता है, पानी बाहर आया मतलब कि उसके ऊपर अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा. अच्छा कितना आया, तो इसके वेट जी, द वेट ऑफ दिस, राइट. तो जो वेट होगा वही पानी बाहर आएगा, राइट. सो इट इज अगेन द buoyancy force इज इक्वल टू अगेन इट इज लाइक mg. वेट जितना ही है, समझो वेट जितना है, वेट नहीं वेट जितना है, m इंटू जी. सो अगेन कैन आई राइट m की जगह लाइक दिस, okay, but here the water is coming out or the liquid is coming out, then I have to use the density of fluid, not density of sphere. इसकी density measure नहीं करनी है, इसकी density. So what, how I can write velocity, volume into density of sphere, that is sigma and g. Clear? This is known as a buoyancy force. तो इसके ऊपर दो फोर्स लगता है, एक लगता है buoyancy force प्लस एक लगता है viscous drag. अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक buoyancy फोर्स और एक है विस्कोस ड्रैग. अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, v इंटू सिग्मा इंटू जी प्लस विस्कोस ड्रैग. वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट इज 6 पाई eta into r into, now here I am writing vt. Why I am writing vt? Because it is terminal velocity, right. This is the condition at terminal velocity, condition at terminal velocity, right. It is the condition at terminal velocity. What will happen, अगर terminal velocity आ गई तो हमको पता है downward force is equal to upward force, downward force is equal to upward force. Okay, downward force कितना है, that is v into rho into g, that is our downward force. upward force कितना है, this is upward force, right. It is equal to v into sigma into g plus 6 pi eta into r into vt. What is r? That is the radius of sphere. We have derived that, right. चलो ठीक है. Now we have to find vt. Okay, so take this at this side. क्या हुआ, 6 pi eta into r into vt is equal to rho v into rho into g minus v into sigma into g, right. So from this v into g common, अंदर क्या बचा, rho minus sigma, that is equal to 6 pi eta into r into vt. Now vt is equal to, take this all at this side, v volume into g, here rho minus sigma divided by 6 pi into eta into r, right. ये सारी टर्म यहाँ लिखें. नाउ v इज इक्वल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम, इस स्फीयर का वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं. द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम वी हैव 4/3 पाई आर क्यूब, राइट. 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज v इंटू g इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 6 पाई इंटू ईटा इंटू r, right. See, pi cancel. Okay, here 1 r and here r cube, so बन जाएगा r square. So we get like this, 4 into r square into g into rho minus sigma divide by, ये 3 नीचे आ गया, 6 into eta, right. Once again 2 and here 3. So we get the final equation like this, 2 r square into g rho minus sigma divided by 3 into 3, 9 into eta. This is the equation of terminal velocity. This is the equation of terminal velocity. Dear students, hope all of you are clear with this equation. I am writing it over here. It is very important. Terminal velocity is equal to 2/9 into r square
into G rho minus sigma divided by it. Clear? See, this is the equation. Now focus over here. This terminal velocity, it is proportional to the radius. It is proportional to the square of the radius. मतलब कि ये जितना बड़ा होगा the sphere, अगर इसकी रेडियस हमने जितनी बड़ी रखी उतनी ही टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी. Right? It is proportional to the square of the radius and inversely proportional to the coefficient of viscosity. Right? This is, dear student, it is very important. Even one more thing, terminal velocity, it is proportional to the difference of density. इसकी डेंसिटी एंड लिक्विड की डेंसिटी का डिफरेंस इसके ऊपर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करता है. आर यू गेटिंग? सो दिस इज सम टॉपिक वी कैन गेट. Vt is equal to 2/9 r square g into rho minus sigma divided by eta. So hope all of you are clear with this terminal velocity and our viscous drag. So dear student, it is very important, and some illustration and examples are going to be asked from this type of equations. Hope all of you are clear. Practice it well and do your best. All the best. Thank you very much.